हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक है केस नंबर 2 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दैट सेज टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि केस नंबर 2 में इनकमिंग पार्टनर अपना कैपिटल का शेयर लेकर नहीं आता एंड वी कैलकुलेट हिज कैपिटल on the basis of old partner's capital. Now in this case also there are two situations. Today we are doing only the first situation, that is when the new partner is required to bring proportionate capital. यानी कि नया partner proportionate capital लेकर आएगा business में. For this I have taken question number 93 of T.S. Grewal. In this question Pradeep and Dhanraj, they are partners in a firm and they share profits in the ratio 3:1. यानी कि 3 + 1 is 4. 3/4 है प्रदीप का शेयर, 1/4 is धनराज शेयर. Now their balance sheet on 31st March 2020 is given as, जिसमें हमारी liabilities में we have creditors, bills payable, reserve fund. अब reserve fund we know that it will be distributed among the partners. Outstanding salary is there, capitals are given. Asset side में we have cash, debtors, provision for doubtful debts, stock, bills receivable, patents, machinery. Now the question says कि लियांडर को हमने एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3. दैट इज 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8. यानी कि 3/8 है प्रदीप का शेयर, 2/8 है धनराज का शेयर एंड 3/8 इज लियांडर्स शेयर. लियांडर जो है ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. He brings proportionate capital. This shows this is case number 2 and situation number 1, because in this question the new partner has not brought his share of capital and the question specifies that he is bringing in proportionate capital. वो अपना capital का share लेकर नहीं आया और इस line से हमें पता चल रहा है केस नंबर 2 का first situation है. Now Leander is bringing 16,000 as a share of goodwill. यानी कि 16,000 वो goodwill लेकर आए. इसकी हम journal entry पास करेंगे. Cash account debit to premium for goodwill 16,000 and then we will be distributing this 16,000 among sacrificing partners in their sacrificing ratio. Provision for doubtful debts जो है it is to be reduced by ₹2,000. यानी कि क्वेश्चन में डेटर्स में से जो प्रोविजन 5,000 लेस किया हुआ है, in that 5,000 2,000 has to be deducted. It means now the provision is 3,000. Provision is reduced by 2,000. यानी कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है 2,000 से, क्योंकि प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है. तो दिस विल बी शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो बैलेंस है 5,000 - 2,000 दैट वी विल बी शोइंग इन द बैलेंस शीट. Now there is an old typewriter which is valued at ₹2,400. It is not appearing in the books of the firm. It is now to be recorded. यानी कि एक unrecorded asset है जिसके बारे में अब हमें पता चला है. तो it means assets हमारे increase हो गए हैं and they are increasing by 2,400. तो ये जो increase हुआ है हम ये balance sheet में show करेंगे and its effect will be in revaluation also. Last adjustments is patents are valueless. Patents की जो value है that has become 0. बैलेंस शीट में हमें पेटेंट्स दे रखे हैं 1,000. इट मीन्स द वैल्यू हैज़ reduced to now 0. So there is decline of 1,000 in patents, that is an asset. We have to prepare revaluation account, capital accounts and balance sheet of Pradeep, Dhanraj and Leander. Now I've already prepared the format for this question. We have to make revaluation account. तो हमने प्रिपेयर कर रखा है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें हमारा डेबिट क्रेडिट एंड पर्टिकुलर्स प्रदीप धनराज लियांडर, पर्टिकुलर्स प्रदीप धनराज लियांडर and balance sheet as on 31st March 2020, liabilities rupees, assets rupees. So the format is already prepared. Now we know that in revaluation account on the credit side we write increase in assets and decrease in liability, और इसका opposite हमारा डेबिट साइड पे जाता है, that is decrease in assets and increase in liability. So we will be following this rule in revaluation account. Now let's complete the working notes along with the question simultaneously and then we will be transferring each and every adjustment in revaluation account, balance sheet and capital account. So let's see. Now the first statement says कि प्रदीप एंड धनराज जो है ये पार्टनर्स हैं एंड देयर रेशियो इज़ 3:1. तो क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो गिवन है प्रदीप एंड धनराज की, दैट इज़ 3:1.
1. So we are having old ratio as 3:1. So this is 3/4 for Pradeep and 1/4 for Dhanraj. Now the balance sheet is there and now we are having Leander as a partner और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3. We will write new profit sharing ratio is 3:2:3, which is equal to 3/8, 2/8 and 3/8. Now we can calculate the sacrificing ratio by using the formula old ratio minus new ratio. तो प्रदीप की sacrificing ratio हो जाएगी his old share is 3/4 minus his new share, that is 8 is the LCM. 6 minus 3 is equal to 3/8. और धनराज का है हमारा ओल्ड शेयर 1/4. His new share is 2/8. We are getting LCM as 8, that is 2 minus 2, which is equal to 0/8, that is 0. It means only Pradeep is the partner जो sacrifice कर रहा है. तो खाली एक ही पार्टनर यहाँ पे sacrifice कर रहा है, तो we will be transferring premium to his account only. Now they say Leander first adjustment is Leander brings 16,000 as a share of goodwill. यानी कि इसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर प्रीमियम को हम ट्रांसफ़र करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमने अभी कैलकुलेट करी जो खाली प्रदीप कर रहा है. तो जर्नल एंट्री विल बी नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. That is 16,000. Narration we can write being premium for goodwill brought in cash. Second journal is premium for goodwill account to प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट. क्योंकि प्रदीप जो है वही एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो वी विल ट्रांसफ़र द प्रीमियम अमाउंट इन प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल रिमेन 16,000. इसमें एक ही पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है तो हमने प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ उसी पार्टनर को ट्रांसफ़र करा है. नरेशन विल बी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज प्रदीप in this case. So we have passed a journal entry. Now we can pass these journal entry. कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो है हम कैश अकाउंट बनाएंगे उसमें वी कैन ट्रांसफ़र. प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रदीप्स कैपिटल जो है हम ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे. सो लेट अस फर्स्ट ट्रांसफ़र दिस कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश अकाउंट. आज प्रिपेयर्ड है कैश अकाउंट जिसमें हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड देन वी राइट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट that is 16,000 and capital balance is given in the question as 4,000. We will transfer this 4,000 also here, that is 4,000. और ये जो सेकेंड एंट्री अभी हमने पास करी थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे दैट इज़ प्रदीप्स कॉलम. So here we will be transferring by premium for goodwill. प्रदीप के कॉलम में हमने 16,000 ट्रांसफ़र कर दिया. So now first adjustment is over. Now second adjustment, provision for doubtful debts is to be reduced by ₹2,000. यानी कि जो हमारी प्रोविज़न है वो 2,000 से रिड्यूस हो गई है. इट मीन्स लाइबिलिटी हैज़ डिक्रीज बाय 2,000. तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी जो है हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करते हैं. तो वी विल राइट हियर बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज़ 2,000. और जो हमारी बैलेंस शीट है
इस बैलेंस शीट में डेटर्स आर 50,000 एंड प्रोविज़न हमारी 5,000 लेस है। तो जब हमारी प्रोविज़न 2,000 डिडक्ट हुई है तो 5,000 माइनस 2,000 यानी कि एट प्रेजेंट वी हैव प्रोविज़न एज 3,000। तो न्यू बैलेंस शीट में हम शो करेंगे डेटर्स एज 50,000 लेस provision for doubtful debts, that is 3,000. We will get now 47,000. So we have transferred the second adjustment at two places. तो यानी कि हमारी provision वाली जो doubtful debts है that we have already transferred, this is over. Next we have, there is an old printer valued at rupees 2,400. यानी कि एक ओल्ड प्रिंटर था जिसको अब हमने नोट किया है, तो इट मीन्स एसेट्स हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा 2,400 और इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी शो करेंगे। बैलेंस शीट में व्हेन एसेट इज़ इंक्रीजिंग वी विल शो इट इन द एसेट साइड प्रिंटर, that is 24,400 and in revaluation account by printer 2,400. So हमने प्रिंटर को भी दो इफेक्ट्स दे दिए। We have transferred printer in revaluation account and balance sheet. Now next adjustment is patents are valueless. यानी कि पेटेंट्स हमारी एसेट्स हैं और हमें बैलेंस शीट में पेटेंट्स दे रखे 1,000 यानी कि इनकी वैल्यू अब ज़ीरो हो गई है। तो वी विल बी ट्रांसफरिंग दिस पेटेंट्स इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज डेबिट साइड टू पेटेंट्स, the value of patents has declined and reduction in asset we show in revaluation account on the debit side. तो हमने डेबिट साइड पे 2 पेटेंट्स लिख दिया है और बैलेंस शीट इसको हम नहीं दिखाएंगे बिकॉज इट्स वैल्यू हैज़ बिकम नाउ ज़ीरो। तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ प्रदीप, धनराज एंड लियांडर। वी हैव ट्रांसफर्ड एवरीथिंग। अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट जो है दैट वी हैव टू डू नाउ इन दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर रहे हैं, दैट इज़ 4,400, बैलेंस इज हियर 3,400, दिस इज टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड to Pradeep, Dhanraj, and this we will be doing in their old ratio, that is 3:1. So 3/4 multiplied by this 3,400 and 1/4 multiplied by this 3,400. So 1/4 multiplied by 3,400 is 850 और 850 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो we will be getting 2,550 and that is Pradeep's share and total is 4,400. अब ये जो revaluation profit है इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे by revaluation account, that is 2,550 and 850. यहाँ पे हमारा by balance brought down भी आएगा, that we will be writing from the balance sheet by balance brought down, that will be the capital given in the question. Now that is 60,000 and 20,000. तो 60,000 and 20,000 is given. एक हमें रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है 16,000 का, that will be distributed in 3:1 only. तो 3/4 multiplied by 16,000 and 1/4 multiplied by 16,000. We will be writing reserve fund. तो reserve fund जो है हमारा that will be transferring now. Capitals of the partners, that is given as 60,000, 20,000 for Dhanraj by reserve fund, that is 16,000 multiplied by 1/4, that will be 4,000 for Dhanraj and 4,000 multiplied by 3, that is 12,000 for Pradeep. That's all. Now we will be finding out the balancing figure. यहाँ तो कुछ नहीं आएगा,
The total is now 0, 5, 8, 4, 2, and for Pradeep the total is 0, 5, 5, 90,550 we are getting here. Now this is 2 balance carried on, that is 90,550 और 24,850 आ गया हमारा, and total is the same 90,550, 24,850. Now we will be transferring this carried on here by balance brought down, that is 90,550, 24,000. So now in capital account we have transferred the capitals of Pradeep and Dhanraj from the balance sheet. हमने प्रीमियम ट्रांसफ़र करा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट इज़ प्रदीप जो लियांडर लेकर आया, एंड वी ट्रांसफर्ड द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट. रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है इन नोन रेशियो, दैट इज़ 3:1. उसके बाद हमने टोटल करके इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला. दिस बैलेंसिंग फिगर इज़ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ प्रदीप एंड धनराज, क्योंकि ये कैपिटल हमने सारी एडजस्टमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद कैलकुलेट करी, एंड दिस बैलेंसिंग फिगर इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ प्रदीप एंड धनराज. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लियांडर्स कैपिटल, एंड दैट इज द प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट ही इज ब्रिंगिंग इन द बिजनेस. So now let's see the question. The question says, Leander as a new partner is admitted with new ratio as 3:3. Leander brings in proportionate capital after the following adjustment. तो adjustments हम कर चुके हैं, अब हमें calculate करनी है उसकी proportionate capital. For that we have to work on now in the working notes. तो working notes में अब हम calculations करेंगे. Combined capital of Pradeep and Dhanraj after all adjustments. अभी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था. प्रदीप का जो बैलेंसिंग फिगर था दैट वाज 90,550 एडजस्टेड कैपिटल है ये, और 24,850 जो है दैट वाज फॉर धनराज. तो वी विल बी टोटलिंग दिस, वी विल गेट ₹115400, दैट इज़ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ प्रदीप एंड धनराज. सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो इनका बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल का, उसको हमने टोटल करके कंबाइंड कैपिटल निकाल ली फर्म की. अब कंबाइंड शेयर जो है प्रॉफिट का ऑफ प्रदीप एंड धनराज, वो भी हमें कैलकुलेट करना है फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ लियांडर. तो नाउ दैट कैन बी कैलकुलेटेड जब हम टोटल प्रॉफिट को एज्यूम कर रहे हैं 1, और उस 1 में से हम माइनस कर रहे हैं लियांडर का शेयर. तो लियांडर्स शेयर इज 3/8. तो 1 minus 3/8 is LCM is 8. 8 minus 3 that is 5/8. तो यानी कि 5/8 जो है दैट इज़ अ कंबाइंड शेयर. अब हमारे पास कंबाइंड कैपिटल है, वी नो द कंबाइंड प्रॉफिट शेयर, तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ प्रदीप एंड धनराज. तो हमारी कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 115400. 1,15,400 is the combined capital, and now this we will be multiplying with the reciprocal of this 5/8. यानी कि जो हमारा रिमेनिंग शेयर था, कंबाइंड शेयर है जो प्रॉफिट का, दैट वी आर रेसिप्रोकेटिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द फर्म. तो अब हम इसको 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल बी गेटिंग 5, that is 1,84640. वी गॉट दिस. अब ये जो है ये हमारी फर्म की कैपिटल आ गई. इसमें हम लियांडर्स का कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस अमाउंट बाय लियांडर्स शेयर. लियांडर का शेयर 3/8 है, हम इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1,84640. वी विल गेट 69,240. ये आ गई हमारी लियांडर की capital. So we have calculated Leander's capital. Now this we will be transferring in capital account. यानी कि जो Leander capital लेकर आया उसकी एंट्री हुई कि कैश अकाउंट डेबिट टू Leander's capital account. तो third journal we can transfer here, that is cash account debit to Leander's capital
account and his capital is 69,240. 69,240 इसको हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं डेबिट साइड पे टू लियांडर्स कैपिटल अकाउंट, that is 69,240. Now we can total this cash account and find out the balancing figure also. The total is 40, that is 298. यानी कि 89,240 is the balancing figure, that is by balance carried on, that is 89,240, 89,240. Right, so this cash balance now we will be transferring in the balance sheet of the firm. So balance sheet जो है firm की उसमें हम ये cash transfer करेंगे. This cash is 89,240. So we have transferred this और जो ये लियांडर की कैपिटल है कैश टू कैपिटल ये हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको बाय कैश अकाउंट 69,240 in Leander's capital account. Now we can total this 69,240, this is 24,850, 90,550 and this is to balance carried on, that is 90,550, 24,850 and 69,240. तो ये हमारी आ गई कैपिटल्स ऑफ न्यू फर्म आफ्टर लियांडर्स एडमिशन जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट, दैट इज़ मेड आफ्टर लियांडर्स एडमिशन. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैपिटल्स. अब कैपिटल्स में प्रदीप, धनराज, लियांडर एंड कैपिटल्स आर 90,550, 24,850, 69,240 and total was 1,84,640. तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर. नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड द न्यू कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन न्यू बैलेंस शीट. तो अब हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल ली लियांडर की, दैट इज 69,240 एंड जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था पार्टनर्स का दैट वाज एडजस्टेड कैपिटल 90,550 एंड 24,850. हमें ये नीचे का पार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी इन दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली बिकॉज बैलेंसिंग फिगर हमारा यही है. हम यहाँ पे भी बाय कैश लियांडर का अमाउंट लिख सकते थे और यहाँ पे कैरिड ऑन में वी वुड हैव एंटर्ड लियांडर्स शेयर ऑफ कैपिटल. बट जस्ट टू क्लियर the concept I have just made this lower portion also so that there will be clarity of the concept कि ये हमने adjusted capital निकाला, then we did brought down and after that we calculated the proportionate capital and that we transferred here. तो अगर हम इसको नहीं भी बनाएंगे तभी the question is fine with this upper part only. Now the balance sheet of the question that we have, it has certain things that we have still not transferred. तो जो ये बैलेंस शीट है उसमें जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, लेट्स कंप्लीट दैट नाउ. अब क्रेडिटर्स में नो चेंज, वी विल ट्रांसफ़र दिस एज इट इज़. क्रेडिटर्स को हम 30,000 ट्रांसफ़र करेंगे. बिल्स पेबल वी विल हैव टू ट्रांसफ़र. रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यानी कि ये तीन चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करनी है. देन वी हैव कैश, कैश का बैलेंस हमने कर दिया. डेटर्स वी हैव डन. स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एंड मशीनरी, ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी इनका हम सेम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे इन दी बैलेंस शीट. So let's do that now. Now first of all we have asset में stock. The stock is given as 30,000. Then we have bills receivable. Bills receivable is 10,000. Then we have machinery. Machinery is given as 40,000. और लाइबिलिटी में हमारा था
sundry creditors, then we have bills payable, and the last we have outstanding salary. तो जो sundry creditors है that is 30,000, bills payable is given as 1,000, and outstanding salary is given as 3,000. So we have transferred everything now in the balance sheet. Now we will just total this. We will get 0, 4, 6, 8, 1 and 2. That is 2,18,640. इस साइड पे भी 0, 4, then 6, 8, 1, 2. That is 2,18,640. So this is the way we will be doing the question. So let us recapitulate. हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जिसमें हमने इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी को क्रेडिट किया एंड डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हमने डेबिट किया. प्रोविजन जो था वो हमारी लाइबिलिटी है, दैट वाज डिक्रीजिंग बाय 2,000, हमने यहाँ ट्रांसफर करा. प्रिंटर जो है दैट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो गया, वी ट्रांसफर दैट. पेटेंट्स हमारे वैल्यूलेस हो गए थे तो हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, we have transferred in the debit side. Now we found the balancing figure जो हमारी 3,400 आई. We calculated that revaluation profit, and this revaluation profit we have transferred in capital account. हमने यहाँ पे capitals transfer करी है from the balance sheet. 16,000 जो है that is basically the goodwill that Leander brought in बिजनेस. तो लियांडर जो गुडविल लेकर आया उसकी एंट्री थी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड आफ्टर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो खाली प्रदीप है, तो वो एंट्री हमने यहाँ ट्रांसफ़र करी है. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वी हैव ट्रांसफर्ड. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द रिजर्व फंड इन ओल्ड रेशियो, 16,000 था. उसके बाद हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करी. ये बैलेंसिंग फिगर हमारी एडजस्टेड कैपिटल है. इस एडजस्टेड कैपिटल को हमने ब्रॉट डाउन किया. देन वी कैलकुलेटेड लियांडर्स शेयर दैट इज़ प्रोपोर्शनेट 1, तो वो हमने कैलकुलेट करा. सबसे पहले हमने कंबाइंड कैपिटल जो है प्रदीप की एंड धनराज की जो हमारी यहाँ पे आई है 90,550 एंड 24,850, इस कंबाइंड कैपिटल का हमने टोटल किया. और फिर हमने कंबाइंड शेयर निकाला प्रदीप एंड धनराज का. वो हमने निकाला बाय सब्ट्रैक्टिंग लियांडर्स शेयर फ्रॉम टोटल प्रॉफिट दैट इज़ 1. तो हमने सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल निकाली, वी टोटल दिस बैलेंसिंग फिगर. फिर हमने कंबाइंड शेयर निकाला 1 - 3/8 दैट इज़ 5/8 फॉर बोथ कंबाइंड शेयर ऑफ प्रदीप एंड धनराज इज 5/8. अब हमने इस कंबाइंड कैपिटल को कैपिटलाइज किया बाय रेसिप्रोकेटिंग दिस कंबाइंड शेयर, दैट इज़ 8/5 मल्टीप्लाइड बाय 115400. तो हमारी टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, जिसमें से हमने लियांडर का शेयर निकाला, दैट इज़ 3/8 इंटू 184,640, दैट कम्स आउट टू बी 69,240. और ये कैपिटल हमने ट्रांसफ़र कर दी कैश अकाउंट में इन लियांडर्स कॉलम, दैट इज़ बाई कैश 69,240. फिर हमने टोटल करके यहाँ पे कैरिड ऑन निकाला. दिस कैरिड ऑन इज कैपिटल दैट वी हैव ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स हमारे सेम है, बिल्स पेबल हमारा सेम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम है क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ. डेटर्स में से हमने प्रोविजन लेस किया 3,000, 5,000 गिवन था हमें, और 2,000 हमारी रिडक्शन हुई है तो हमने 5 - 2 किया, दैट इज़ 3,000. प्रिंटर हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट है, इंक्रीज़ हुआ है तो एसेट आ गया हमारा. कैश के लिए हमने अकाउंट बनाया था, दैट वी गॉट द बैलेंसिंग फिगर एज 89,240. स्टॉक 30,000 सेम है, बिल्स रिसीवेबल इज सेम, मशीनरी इज सेम क्योंकि इनकी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है. एंड देन वी टोटल द बैलेंस शीट. और वर्किंग नोट्स में जो हमने कैश अकाउंट बनाया है, इन दैट कैश अकाउंट हमने ओपनिंग कैश बैलेंस डाला, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लियांडर लेकर आया दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड हियर ऑल्सो. और फिर हमने लियांडर जो कैश लेकर आया फॉर हिज कैपिटल दैट वी हैव ट्रांसफर्ड, टोटल इज़ 89,240. ये हमारा बैलेंस कैरिड ऑन आया जो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया. एंड जर्नल एंट्रीज दैट वी पास्ड इन दिस क्वेश्चन आर कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो प्रीमियम लियांडर लेकर आया. This premium is being transferred to Pradeep's capital account, that is the sacrificing partner in old ratio. तो एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो हमने उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया. एंड द लास्ट लियांडर जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया उसकी एंट्री हमने पास करी जो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करी. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.